जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी आज की वीडियो है हमारी MCM 301 पे। स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि MCM 301 और STA 301 की भी वीडियोस बना दें, तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इंशाल्लाह जल्दी उसको भी अपलोड करूंगी। और आज हम बात करते हैं MCM 301 पे। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट से आप बाखबर रह सकें। तो जी हमारे पास यहाँ पे MCQs हैं। पहले सबसे हम MCQs को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम्स आर एक्सीलेंट फॉर कन्वेइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडियंस। अच्छा जी, इसमें मैंने मोस्टली जितने भी MCQs देखे हैं जी, ये जो पेपर में आए हुए हैं, तो ये एक्सेप्ट के रिलेटेड है। मतलब कि तीनों ऑप्शंस आपके सही होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनमें से एक ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड सेटअप बना के कि आपने एक्सेप्ट वाले MCQs थोड़े ज़्यादा लग रहे थे मुझे, क्योंकि जितने भी मैं बनाए हैं उनमें तो मोस्टली यही थे। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ outlining speech is generally preferred for negative news message indirect method. All of the following suggestions help improve the effectiveness of the opening paragraph of business writing, except make sure the beginning is inappropriate for the situation. To say a clear no or writing a straight refusal in a disappointing news letter, all of the following techniques are useful except de-emphasize the disappointing news. Which of the following is a good replacement of word spokesman to avoid gender bias in writing? Presenter. Next, when it comes to writing disappointing news letter, all of the following are correct except avoid a neutral or buffered opening. Which of the following may decrease your chances of getting a raise? When you have volunteered and handle additional responsibilities successfully. All of the following are responsibilities of interviewee to help make the interview a success, except using secondary questions, to being a disappointed newsletter with a negative information dash a negative situation complicates the letter written to book some place like room, hall, etc. are called reservation letters. The courteous clause of direct request letter contains all of the following except information about your city. All of the following are group task roles that people have to play in group communication or group activity except encouraging. All of the following is the way of avoid faulty logics in persuasive writing except avoid logical sport. While determining the order of the topics, one should review the outline, keeping all of the following questions in mind except are related topics properly shuffled? The suggested plans for a sale letter includes all of the following elements except an opening that could detract the reader's attention. Which of the following is not suggested for an appropriate ending of the business writing request letters? Keep the ending paragraph as long as circumstances allow. Which of the following is of primary importance in writing disappointing newsletters? Negative personal expressions are avoided. The direct method is adopted at organizing stage of effective business writing for which of the following purposes? Presenting a general statement. Almost every customer who makes a claim is emotionally involved. Therefore, which of the following is usually the best approach for a refusal? Indirect method. Which of the following contains the background information and the primary request in a direct inquiry letter? The opening section. The suggestions plan for a letter in which information about a job applicant is requested include all the following elements except inappropriate closing. The well-written resume may include a persuasively arranged summary of all of the following except information of family tree. Which of the given statement shows racial bias?
His black assistant speaks more clearly than he does. Interpersonal communication process depends upon communicators. All of the above. अब यहाँ पे तीनों ऑप्शंस होंगे, आपने उनको ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंगली आपने इसका ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। वहां पे जो भी होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन ये हुआ तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेटर्स, ओके। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर परस्यूसिव, लेट्स गेट इमीडिएट अप्रूवल ऑन दिस, ठीक है। और भी बहुत से होंगे वहां पे ऑप्शन, लेकिन उनमें से करेक्ट ये होगा, मोर परस्यूसिव जो भी हुआ अकॉर्डिंगली आपने वो सिलेक्ट करना है। CC abbreviation carbon copy. When people ask you for information and you can't honor the request, you may answer with both direct and indirect approach. The work experience section dominates and is placed in the most prominent slot immediately after the name and address and the objective. तो ये कौन सा रेज्यूमे है? क्रोनोलॉजिकल, ओके, क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल क्लोजिंग द मैसेज इन अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट exaggeration of facts. Yes, exaggeration प्रोनाउंसिएशन अब खुद ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है सपोज अ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन ऑन सम डोमेस्टिक मैटर एंड बाय दैट टाइम देयर किड वेल्स अप एंड स्टार्ट क्राइंग। आई थिंक सो वेक्स अप है, ये वेल्स अप नहीं है, वेक्स अप है, ठीक है। तो गलती से ये लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज होगी? नॉइज, ठीक है। क्या कह रहा है? सपोज अ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन ऑन सम डोमेस्टिक मैटर एंड बाय दैट टाइम देयर किड वेक्स अप एंड स्टार्ट क्राइंग। नॉइज, ऑब्वियसली। All of the following are accurate statements regarding interviews, except interviews can have more than two parties because there are sometimes multiple interviewer and multiple respondents, ठीक है। Which of the following in a claim letter should mention the nature of the claim? The opening paragraph. Which of the following refers to everything a speaker does or says, both verbally and non-verbally? Content. All of the following are correct when it comes to writing disappointing newsletter, except avoid our neutral or buffered opening. अच्छा, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, तो ये एक्सेप्ट वाले जो है ना आपने ध्यान से करने हैं, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए एक मतलब माइंड सेटअप बना लें कि आपने किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही रखना है कि अच्छा इसमें से सही कौन सा होगा, मोर जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है, और मे बी जो गलत होगा वो फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेक अ न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ द मैसेज? बफर, ओके। Which of the following methods cannot be used to capture attention in the opening paragraph of a persuasive message? Use of color. In written communication, use of active verbs help make sentences more. All में क्या क्या था? Specific, concise and emphatic, ठीक है। तो इन ये तीनों ऑप्शन ऊपर ये होंगे और लास्ट पे ऑल दिया होगा या ऑल ऑफ द अबव दिया होगा या ये इसी तरह से दिया होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है मेंशनिंग डेट एंड टाइम इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेटर्स एक्सेप्ट स्पीकिंग इन्विटेशन लेटर्स, okay. All of the following suggestions help improve the effectiveness of the opening paragraph, except make sure the beginning is inappropriate for the situation. Which of the following techniques can be used to make people not to lose their focus due to videos incorporated in presentations? By keeping the video short, okay हो गया जी। Dash is used to introduce the reader to a longer accompanying message, transmittal memo. Outline the topics you plan to include in organizing stage. Adopt audience-centered tone by paying attention to all. You attitude, choose positive words, use respectful language. अच्छा जी, ये इसके तीन ऑप्शन होंगे, यू एटीट्यूड, चूज पॉजिटिव वर्ड, यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो इसके सारे ऑप्शन अब आपने पढ़ा हुआ है ना, मीन्स टू से आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं,
आपने रीडिंग की हुई है तो आपके लिए मे बी ये ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो जो भी ऑडियंस सेंटर टोन होती है वो कौन सी होती है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये उसका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद है a dash calls on human feelings basing the argument on audience needs, emotional appeals. The well-written resume may include a persuasively arranged summary of all। ठीक है, अब all आपको देख लीजिएगा, नहीं तो अच्छी बात ये होगी कि आप ये वाले जो क्वेश्चन है ना इनको बुक से फाइंड आउट कीजिएगा और जो जो भी उसके ऑप्शंस होंगे उनको अच्छे से जो है अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ताकि मे भी कभी वो ऑप्शन चेंज कर देता है, ऑल के अलावा वो एक्सेप्ट कर दे तो फिर आपको चूज करने में मुश्किल होगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको फाइंड करें और अच्छे से अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपका थोड़ी देर तक या जल्दी पेपर है तो फिर तो आप इसी को अच्छे से जहन में बिठा ले तो इट्स इनफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आपने इनको भी अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अ मेमो, ठीक है, मेमो का क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो आपने बताने हैं। मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। आई थिंक सो मुझे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको या आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप यहीं से इसको पढ़ लें तो अच्छी बात है। ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोग भी उकता जाते हैं, तो मैं नहीं ये चाह रही कि आप लोग इस तरह से जो है उकता जाएं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद फॉर्मेटिंग यानी कि ग्रुप्स को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, तो उसके कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और ओरिएंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इमरजेंस। तो ये जो भी है, मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस वजह से ये लॉन्ग है, तो आपने इसको अच्छे से जो है ना देख लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है बुक से। सजेशन तो मैं आपको यही दूंगी कि आप इसको फाइंड आउट करें बुक से और वहां से आराम से इसको पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो आप इस यहाँ से भी इसको देख के पढ़ सकते हो, इसका एसेस ले लो या जिस तरह से भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग परस्यूसिव मैसेज। अब परस्यूसिव मैसेज को कैसे प्लान करते हैं, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो वो देखने हैं हमने। सबसे पहले हमारे पास एनालाइज योर पर्पस, एनालाइज योर ऑडियंस, गेजिंग ऑडियंस नीड्स, कंसीडरिंग कल्चरल डिफरेंसेस, एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, स्ट्राइव फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे उसके क्या नाम लेते हैं स्टेप्स हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करना है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो आपसे पूछता है कि किसी भी परस्यूसिव मैसेज को प्लान करने का क्या क्या तरीका होता है, 3 ऑप्शन इसमें से दे देता है और एक कहीं और से देता है और एक्सेप्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर दूसरा जो वे है वो ये है कि वो तीनों ऑप्शंस दे देता है और चौथे में ऑल ऑफ द अबव कह देता है। तो जब तक आपको इसके सारे पॉइंट्स का पता नहीं होगा, आई थिंक सो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी ही होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी डेवलपिंग परस्यूसिव मैसेज। अब डेवलप किस तरह से करते हैं, गेट योर ऑडियंस रीडर्स अटेंशन, फिर बिल्ड योर रीडर्स इंटरेस्ट, फिर इंक्रीज योर रीडर्स डिजायर, फिर मोटिवेट योर रीडर्स टू टेक एक्शन। ओके हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी नंबर 4 पे रिफ्यूजिंग अ क्लेम, क्लेम को किस तरह से रिफ्यूज करना है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास एसेंशियल पार्ट्स। अब एसेंशियल पार्ट्स ये जो बिजनेस लेटर्स या जो भी रेज्यूमेज रिपोर्ट्स कुछ भी हैं तो उनके आपने ये पार्ट्स जो हैं अच्छे से याद कर लेने, ठीक हो गया जी। उसके बाद एसेंशियल पार्ट्स में हम देख लेते हैं लेटर हेड है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये तो आप फिंगर टिप पे भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, इतने ज्यादा पार्ट्स हैं, तो इनमें से कोई से भी 4 उठा के या 3 उठा के दे देगा तो अगर जब तक आपने इनको अच्छे से याद नहीं किया होगा तो आपको समझ नहीं आएगी ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है हेडिंग, लेटर हेड होता है, डेट, इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एरिया, रेफरेंस, इनिशियल्स, एनक्लोजर, कॉपी लाइंस एंड पोस्टस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। मे बी यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो ये ज्यादा लॉन्ग और लंबे लग रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा याद करने में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन आया हुआ है, और साथ आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ लेटर, ठीक है। तो 2 पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट्स। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू गुड न्यूज लेटर्स पोजेस, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी अच्छे लेटर की वो भी आपने देख लेनी है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से कोई भी 3 तो मस्ट आप हर चीज की याद करें, ठीक है। आई नो ये मुश्किल है लास्ट डे पे आके या इस तरह से इनको रिमेम्बर करना,
तो आप ऐसे करें कि आप लोग ना हर इस तरह के जो पॉइंट बने हुए हैं ना, मिनिमम 3 कर लें उनकी, इट्स इनफ, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा तो भी, अगर लॉन्ग है तो उसमें फिर आप थोड़ा अपना भी मतलब माइंड यूज करके उसको 3 पॉइंट जो थे उन्हीं में से कोई एक और 2 निकाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर, और उसमें आ जाता है रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर। उसके बाद हमारे पास है जो करंट पेपर हैं वो हैं, अब ये जो करंट पेपर थे ऑब्वियसली यही थे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, दैट्स वाई उन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट करंट पेपर है, तो करंट पेपर में फंक्शनल रेज्यूमे आया हुआ है, ठीक है। अब फंक्शनल रेज्यूमे एम्फसाइज अ लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयर्स एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस इन सबऑर्डिनेट सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द टाइप्स ऑफ गुड न्यूज लेटर्स, ये ऊपर भी हम देख के आए हैं, यहाँ भी है, ठीक है। कितनी टाइप्स होती हैं, वहां पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे उन्होंने टाइप्स पूछ ली हैं, ठीक है। तो कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पे 6 टाइप्स हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे यूज इमोशनल अपील्स टू हेल्प, या इसका क्वेश्चन ये होगा कि इमोशनल अपील्स को किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से देख लें। उसके बाद है व्हाट इज मेमो। मेमो क्या होता है? अ मेमोरेंडम आल्सो कॉल्ड अ मेमो इज अ मैसेज रिटन टू यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स इनफ, अगर 3 नंबर का है तो ये भी लिख देंगे तो काफी है, ठीक है। लेकिन अगर 5 नंबर का तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ट्रेडिशनली लेटर्स आर यूज फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑर्डिनरली द मेमो इज इंटेंडेड सोनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स डिस्कस हेयर। तो 2 टाइप्स होती हैं डायरेक्ट इंक्वायरी की, एक जो है रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विस, और दूसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इसको भी आप देख लें। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज आउटलाइन द टॉपिक्स। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स। अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में कौन कौन से पर्पसेस आ जाते हैं या लेटर्स आ जाते हैं, वो भी यहाँ पे दिए हैं, वो भी 6-7 हैं, तो वो भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉपी नोटेशन। अब कॉपी नोटेशन के बारे में क्वेश्चन होगा तो वो भी यहाँ पे आंसर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, उसको भी अच्छे से कीजिएगा। स्ट्रेटजीज फॉर परस्यूसिव मैसेज, अब क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं कोई भी परस्यूसिव मैसेज लिखने के लिए, तो वो 4 हैं, वो भी आप अच्छे से, अब आप कह रहे होंगे कि मैं इस तरह से बस बताई जा रही हूँ, अच्छे से कर लिया अच्छे, तो ऑब्वियसली यार आप लोगों ने पेपर देना है, आप लोग ही इसको अच्छे से करोगे तो मतलब कुछ बात बनेगी ना, ठीक है। मेरा काम था आपको अवेयर करना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिनको तो पता था, जिनकी तो तैयारी थी, उन्होंने तो चलो मैं भी पेपर दे भी दिया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता या जिनकी पहले से तैयारी थी, अच्छी भी थी, लेकिन वो फिर एक क्या कहते हैं, बूस्ट करना चाह रहे थे अपनी प्रिपरेशन को, तो आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर एवरीवन, जिनकी तैयारी है भी और जिनकी नहीं भी। तो बस आपने अब ये अच्छे से तैयार करना है। आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका अभी पेपर रहता है या जिनका नेक्स्ट सेमेस्टर ये पेपर सब्जेक्ट है, तो मे भी किसी न किसी तरह ये हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को रखते हैं ना, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी जो भी सब्जेक्ट होंगे, अगर आप उनको पहले से ही उनके इस तरह से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हो ना, तो मे बी ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है उनको तैयार करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लेटर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये लिखने हैं, ठीक है। ऊपर हमने देखा था ना लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होते हैं, एक तो एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। अब उसने पूछा हुआ है कि आप नॉन एसेंशियल जो पार्ट है उनका बताएं कि वो कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियसली व्हाट इन्फॉर्मेशन अ वेल रिटन रेज्यूमे कन्वे, एक अच्छा रेज्यूमे क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, आप इनको जाके देख लीजिएगा हैंडआउट से और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है स्टेट द रिफ्यूजल ऑफ 3 टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर सेइंग नो एज क्लियरली एंड एज काइंड एज पॉसिबल, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही देख के लग रहा है कि इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। व्हाट इज मेमोरेंडम, एज आई सेड के पहले भी आया हुआ है, और आपने अगर 5 नंबर का है तो ज्यादा डिटेल देनी है, और उन्होंने साथ पूछ भी लिया कि इसकी टाइप्स भी बताएं, ठीक है। 5 नंबर का आ तो गया है, अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट इज ग्रुप मीटिंग, ग्रुप मीटिंग क्या होती है, और ऑल्सो राइट द पार्टिसिपेंट रोल, अब इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द क्लोजिंग ऑफ अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर। एंड
दिस इज द एंड। तो आई थिंक सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी होगी। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी हेल्प तो ऑब्वियसली आई नो हुई होगी, और आप दूसरों की भी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।